First of all, I'm very happy I'm meeting the media of Goa once again. And I'm very happy that I'm visiting Goa. I've always believed that though it's a very small state, Goa is unique in our country. There is no other place I can think of which is as unique as Goa is. And what attracts people to Goa is not merely its beautiful places, tourism and all the rest of it, but what the rest of the country and the world appreciates is the composite culture of Goa, the inclusive culture of Goa. And you are aware that that inclusivity, that unity is somehow under challenge today. But I am not going to talk in detail about that. That will be another occasion. The point I am making is that the uniqueness of Goa has to be preserved. The uniqueness of Goa has to be protected. And this character of Goa should not merely be confined to Goa, but the rest of the country should also learn from it. Now, where is my teleprompter? नहीं है, teleprompter नहीं है, तो कैसा बोले? नहीं वो तो हम बोल देंगे. आप लोग समझे हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अब टेलीप्रॉम्प्टर आ गया, हम कंटिन्यू करेंगे. तो एक तो ये था कि आप जानते हैं कि टीएमसी गोवा ने 3 स्कीम्स के बारे में जोर शोर से बात की है. गृहलक्ष्मी कार्ड, युवा शक्ति कार्ड और माझे घर मालिकी हक. तो उसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई है. The point which is often raised and which has been raised with me also in the last couple of days that I have been here, कि इसका फंड कहाँ से आएगा? Where will the fund for all these come from? Our rough estimate is that these 3 schemes together will cost about 3,330 crore. This is a rough estimate, 3,330 crore. And let me mention to you that in terms of the norms which have been fixed by the Finance Commission, latest Finance Commission, and by the RBI, Goa has already an additional fiscal space of 2,100 crore. So that leaves us with 1,200 crore. And in a budget of about 25,000 crore, which is what was budgeted, this amount can be easily found out and spent on this very useful scheme. I can tell you from personal experience that when I was in the Finance Ministry of the Government of India, we used to often issue directives to the other ministries saying, reduce your expenditure by 2%, by 3%, the budgeted expenditure. Even this year, the Finance Minister of the Government of India has said they have revised the estimates and she is telling the line ministry, please don't overspend. So this is something which is well known, and I can tell you with full sense of authority that in this large budget of 2,500 crore, 25,000 crore, we'll be able to find the funds for these schemes. So that will not be an issue, and these schemes will be extremely useful
for the sections of people for which it is meant, for which they are meant, like the ladies, the women of Goa, the youth of Goa, the youth Yuva Shakti card, and for the poor, the ownership of houses. The details have been worked out in our mind, so that should not be an issue. Now, the other thing is that there are various aspects of the economy which are very important for Goa. But I would like to particularly emphasize sustainable agriculture. Just as sustainable mining is important, similarly sustainable agriculture is also very important for Goa. And we will ensure that the farmers here get all the assistance they need to go for scientific and sustainable farming. We'll also ensure that Goa does not import food grains for consumption. If at all it imports food grains from neighboring places, it should be for processing. And there should be a network of food processing industries in Goa, apart from fisheries, which will give the advantage of value added to the farmers and improve the economy of Goa. Similarly, a lot of emphasis on MSMEs and all that. You are aware of the fact that Goa has slipped as far as ease of doing business is concerned. Other states are making progress and we are slipping behind. Goa was 19 in 2015, it was 21 in 2016, then it came back to 19 in 2017. And in 2019, it has declined to 24. It is one of the last states in ease of doing business. And obviously, industry, entrepreneurship cannot progress if the ease of doing business is not attended to. So this is something on which we lay a special emphasis. So these are the few points which I wanted to make from my side. If there are any questions from your side, I will be glad to answer. आपके कुछ सवाल हैं? Sir, आप पूछिए. I am Vikan Sai, report for Herald newspaper. Yes. My question to you, sir, is that you have been a finance minister of country. You have presented 7 budgets in the Lok Sabha. Now, when we see Goa, as you rightly said, it's a small state, but the value chain, value creation is missing in Goa. According to you, sir, how can it be created and what is required in this? I'm talking about fruits, vegetables, meat, everything. Well, I did not use, thank you, Kanji. I did not use the word value chain or the words, but this is what I had in mind when I was talking about value added to agricultural produce. And I mentioned to you that through sustainable agriculture, we will produce more agricultural produce, which will include fruits and vegetables, in which Goa is quite rich and unique. And then it will not be sent out in the raw form. It will be processed, which means that there will be food processing industries. And I also refer to the fact that Goa could become the magnet of food processing industry, not only of the produce which is made, produced here, but also of the adjoining areas. So instead of being net importer of food grains, vegetables, fruits for local consumption, we'll be net importers for processing. And we'll become a magnet where people from the areas nearby and even from some distant places will be able to send their produce to
Goa, and we'll process it, add value to it, and then sell it in the domestic and the export market. So these schemes which were adopted for the Goa, do you think it will be successful if we have a financial deficiency? If you have financial, नहीं फाइनेंशियल तो मैंने बता दिया कि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये इतनी अच्छी वेलफेयर स्कीम्स हैं, कौन नहीं चाहेगा कि हमारे छोटा सा अपना घर हो, तो इसलिए घर अगर किसी को मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। फिर उसके बाद युवाओं को इसमें जो पैसे उनको 20 लाख दिए जाएंगे, वो इसलिए दिए जाएंगे कि वो अपना कोई रोजगार धंधा शुरू करें, और महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ा वेलफेयर स्कीम होगा जो गृह लक्ष्मी वाला है। तो इसलिए वेलफेयर कंबाइंड विद प्रोडक्टिविटी। और मैं एक बात और आपको बताऊं कि मेरा अपना अनुभव है, दुनिया भर के देशों में अनुभव है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब हम करते हैं तो ऐसा लगता है कि पैसा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि तत्काल उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आता है कॉन्क्रीट टर्म्स में। आप एक फैक्ट्री लगाते हैं तो उसका प्रोडक्शन सामने आता है, ह्यूमन रिसोर्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका तत्काल कोई आपके सामने परिणाम नहीं आता है। लेकिन बिना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कोई समाज तरक्की नहीं कर सकता है, कोई अर्थव्यवस्था भी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर होगा रहेगा। सर बिल्कुल ठीक है। एक सवाल ऐसा भी था कि स्टिल हमारे स्टेट बहुत छोटा है, ये विकास ने बोला कि स्टिल बावजूद कर्जा जो है काफी मात्रा में कर्जा है। हम लोग सरकारी गवर्नमेंट के पैसे देने के लिए, पेंशन पैसे देने के लिए और सरकारी योजनाओं के पैसे देने के लिए हर महीने कर्जा लेते हैं। तो इसी टाइप की स्थिति है स्टेट की अर्थव्यवस्था की। तो आप क्या कहेंगे कि, और आपके पार्टी ने भी बहुत सारे अलग अलग ऐसे ये दिखाए हैं, तो ये ज्यादा फिर कर्जा बढ़ता जाएगा या व्हाट इज एग्जैक्टली? नहीं, मैंने जो आपसे बात कही इन 3 योजनाओं के बारे में, तो मैं एक बार फिर इसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि एग्जिस्टिंग बजट से इसके लिए हम पैसा निकालेंगे, कोई एडिशनल टैक्स इसके लिए नहीं लगाएंगे, कोई एडिशनल लोन इसके लिए नहीं लगाएंगे। इसलिए जो ऋण का बोझ है वो सरकार के ऊपर नहीं बढ़ाएंगे, और कोशिश हमारी यही होगी कि वो जो बोझ है ऋण का वो कम हो। क्योंकि मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकता हूं कि एक जनरेशन ऋण ले लेता है, लोन ले लेता है, लेकिन उसको चुकाने का काम जो है वो आने वाली जनरेशन्स को करना पड़ता है। और ये इंटर जनरेशनल इक्विटी एक बहुत बड़ा सवाल है, और प्रेजेंट जनरेशन को कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो इस तरह का भार छोड़ के जाए अगले जनरेशन के लिए। इसलिए मुझे एक बार विपक्ष के लोगों ने लोकसभा में कहा कि आई एम ए फिस्कल टेररिस्ट, क्योंकि मैं इतना जोर देता था फिस्कल रेक्टिट्यूड के ऊपर, फिस्कल कंट्रोल के ऊपर, कि उन्हें यहाँ तक कह दिया कि मैं फिस्कल टेररिस्ट हूँ। लेकिन मैं आज भी उसी पर कायम हूँ, जिसका मतलब ये हुआ कि लोन की सीमा, लोन जो आप लेते हैं उसको सीमित रखिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बोझा छोड़कर नहीं जाए। सर जैसे देखा कि अभी टीएमसी जो नए स्कीम ला रहे हैं, ऑलरेडी गोवा में ऐसी स्कीम है, और जो स्कीम एडिशनल पैसा दे रही है 5000 का, उसमें बजट के ऊपर 8 to 10% का ये बढ़ने वाला है। कैसे देख रहे हो इसके ऊपर? नहीं, मैंने आपसे कहा ना, अगर स्कीम्स है तो उसको मर्ज करके और बढ़िया स्कीम चलाएंगे। दूसरी बात कि उसके लिए जो एलोकेशन है बजट में उसको यूज करेंगे। एडिशनल एलोकेशन जो उसमें हमने बताया आपको फिगर्स दिया, एडिशनल एलोकेशन जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग एग्जिस्टिंग बजट से ही निकालेंगे। उसमें कोई एडिशनल बजट में लोन लगाने की या टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हम महसूस करते हैं। सर गोवा में बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन सरकार है केंद्र और स्टेट में, तो इसमें आने वाले समय में आप कैसे देख रहे हो? डबल इंजन सरकार से ये प्रोग्रेस हो रहा है क्या? डबल इंजन में कभी कभी होता है कि एक इंजन उधर जा रहा है, पीछे का इंजन उधर जा रहा है। डबल इंजन में दे कैन पुल इन डिफरेंट डायरेक्शंस आल्सो।
डबल इंजन सरकार की बात हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे एक गंभीर बात कहना चाहता हूँ, बहुत गंभीर बात, कि डबल इंजन की सरकार की वकालत अगर केंद्र सरकार करती है या भारतीय जनता पार्टी करती है तो इसका मतलब कि वो देश में डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई दूसरी पार्टी की सरकार कहीं नहीं रहेगी। आज वो डबल इंजन कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, कल वो डबल इंजन ट्रिपल इंजन कहेंगे पंचायत के बारे में। ये कैसे चलेगा? हमारा मुल्क जो है उसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि कभी डबल इंजन चल ही नहीं सकता है। और आप इन शो ये गलत नारा है डबल इंजन। सिन्हा साहब, एक दूसरा सवाल है कि गोवा काफी समय से 2011 से माइनिंग बंद है, तो माइनिंग एक ऐसा एकमात्र रेवेन्यू का जनरेशन का बड़ा ये था, तो ये बंद होने के बावजूद काफी सारे इतने बड़े भी सवाल नहीं हुए, लेकिन प्रॉब्लम्स है, स्टेट को प्रॉब्लम्स है, तो ये क्या माइनिंग आपके दृष्टि से कितने इम्पोर्टेंट लगते हैं और क्या होगा? साथ साथ टूरिज्म बारे में क्या आपकी थोड़ी राय चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम सब इस बात से अवगत हैं कि माइनिंग वॉज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ऑफ गोवा, स्टेट जीडीपी, और माइनिंग बंद करने से उसका नुकसान हुआ है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा था शुरू में, तो मैंने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया था, सस्टेनेबल माइनिंग। माइनिंग बंद करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा था। जाहिर है कि हम इस तरह की माइनिंग भी कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। मैं झारखंड के जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर कोल माइंस है, तो पहले कोल माइंस के जरिए बहुत प्रदूषण फैलता था। अब ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक टेक्निक डेवलप किया। मैं ड्रिलिंग करके गैस निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन उन्होंने ये किया कि हम लीज पर जमीन लेंगे, फिर उसको स्प्लिट करेंगे, जमीन को 2 भाग में ऐसे बांट देंगे, अंदर जो मिनरल है उसको निकाल लेंगे और फिर जमीन को ऐसे रिस्टोर करके जैसे ठीक पहले था उसी तरह उसको लौटा देंगे जो भी उसके टेनेंट ओनर्स थे उनको। तो गोवा में सस्टेनेबल माइनिंग की जब हम बात करते हैं तो हम इस फॉर्मूला को लागू कर सकते हैं कि भाई जो मिनरल्स हैं अंदर उसको हम निकाल लेते हैं और पर्यावरण के दृष्टिकोण से और टेनेंसी के दृष्टिकोण से जमीन को उसी हालत में फिर वापस लाकर हम रैयतों को दे देंगे। उसके लिए 25 साल के लिए हमको लीज लेना पड़ेगा, 30 साल के लिए लीज लेना पड़ेगा, तो वो लीज लेंगे और फिर उसके बाद जो भी टेनेंट्स हैं उनको वापस करेंगे। ठीक है जी। टूरिज्म के बारे में, हाँ, टूरिज्म के बारे में क्या पूछना था? टूरिज्म के बारे में मैं बताऊं आपको कि टूरिज्म में तो गोवा दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन वी नीड ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इफेक्टिव टूरिज्म पॉलिसी। इसलिए वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी डू इज टू हैव दैट पॉलिसी, a comprehensive tourism policy for Goa which will take care of everything. Hospitality has suffered a great deal because of COVID, you are aware. तो उसमें कैसे डील कर सकते हैं और फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव से मतलब ये हुआ कि वो भी सस्टेनेबल हो, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो और टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। इस तरह की एक पॉलिसी हम लोग बनानी पड़ेगी। फिर टूरिज्म में प्राइवेट सेक्टर आए, प्राइवेट सेक्टर का फाइनेंसिंग कैसे हो, वो फाइनेंसिंग कैसे प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करेगी, ये सब कुछ जो है बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके बारे में हम लोगों को विचार करके और कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म पॉलिसी गोवा के बनाते हैं। सर, वेस्ट बंगाल में आपकी सत्ता है, गोवा में जैसा टूरिज्म डेवलप हुआ है वैसा वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं हो रहा है ना? वेस्ट बंगाल में तो हम लोग बहुत एडवांटेज है। मैं बंगाल का नहीं हूँ, आप जानते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल में, नॉर्दर्न बंगाल में जो हिमालयाज का क्षेत्र है उसमें बहुत पहले से टूरिज्म डेवलप्ड है और उसमें दार्जिलिंग और ये सब जो इलाके हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी विकास हुआ है और विकास हो रहा है। फिर जो समुंदर का क्षेत्र है जैसे दीघा है,
गंगा सागर है, वहाँ पर भी टूरिज्म की बहुत पोटेंशियल है और वहाँ पर भी टूरिज्म डेवलप हो रहा है। तो बंगाल में एक होलिस्टिक टूरिज्म पॉलिसी है जिसके अंतर्गत ये सब काम हो रहा है। थैंक यू सर, एक लास्ट प्रश्न है सर, कसीनो के ऊपर क्या सवाल करें? हाँ, एक बात मैं और कह दूं, ये आप में से कोई ये ना समझे ये यशवंत सिन्हा आए बड़ी बड़ी बातें कह के और चल दिए। मैं पूरी जिम्मेदारी ले लूंगा इसका। अगर यहाँ की जनता का आशीर्वाद टीएमसी को मिलता है तो मैं यशवंत सिन्हा को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि मैं स्वयं आकर गोवा में बैठूंगा। 3 महीना बैठने की जरूरत पड़े, 6 महीना बैठने की जरूरत पड़े, और ये सुनिश्चित करूंगा कि यहाँ हमारी सरकार जो है वो इन सब वादों को पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए, विदाउट लूजिंग टाइम वो उठाएगा। सर, कसीनो के ऊपर आपका क्या स्टैंड है टीएमसी का? कसीनो के ऊपर हमने पार्टी में उसको डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमारा मानना ये है कि एक इनोसेंट, जिसको कहते हैं निर्दोष स्टेक वाला खेल होता है और एक दोषपूर्ण होता है। तो जो इनोसेंट खेल है वो आदमी अलाउ कर सकता है, जो दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है, फॉल्टी है, उसको रोकना चाहिए। तो ये सब आपकी पार्टी मतलब कसीनो को सपोर्ट करती है? कसीनो में आप समझ गए ना, उसका बहुत तरह के कसिनोज हैं, बहुत तरह के कसिनोज होते हैं। उसमें जो बिल्कुल जेन्युइन ढंग से, बिना चीटिंग के, बिना मैल प्रैक्टिसेस के, कोई ईमानदारी से करना चाहता है तो उसके ऊपर विचार किया जा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू।